Good morning. DBS Sector 45 Gurgaon believes in sensitizing the students about being safe in the cyber world. Our cyber safety club, Cyber Congress, is led by Ms. Sapna Dhawan Ma'am, Dean Student Welfare. The club plays a significant role in spreading awareness about being important or in digitally safe. With growing cases of cybercrime, it has become imperative to arm ourselves with adequate knowledge about cyber safety. With the aim to educate, inform and protect individuals from potential cyber threats, the Haryana Cyber Police is actively conducting programs and sessions. DBS Gurgaon has always partnered with Cyber Police Gurugram to spread awareness and bring a change in the society about safely using the cyberspace. Today, we are privileged to have amongst us Mr. Jasveer Singh, SHO Cyber Police East Gurugram. Sir has done his engineering in IT, MBA and LLM. He has more than 10 years experience and expertise in the field of cybercrime. He is here to support and guide us in our endeavor of safely using the cyberspace. Safe Cyberspace Program 2023 to 2024 was held in the school. As part of this, week-long activities were conducted in the school to spread cyber safety awareness. Students of classes 6th and 7th designed attractive posters and shared with the Congress team. Classes 8th and 9th enthusiastically participated in movie making and shared their ideas. Today's session marks the culmination of this event. Selected entries are shared here. Hi guys, say hi. क्या हो गया? मतलब मैं जब स्कूल में थी तो मैंने ये डायलॉग बहुत सुना था, खाया नहीं है क्या कुछ? Hi, say hi everybody, loud and clear. Say hi. Hi. Okay. So today with Meta and
and Haryana Police, we have come up with a small presentation for all of you about digital safety. और इसी के साथ एक क्वेश्चन, कौन कौन फेसबुक पर है? हाथ खड़ा करो. What about Instagram? Good. So mostly this will be about after you turn 18, since you are not allowed or you are secretly on Instagram or Facebook. So I would like you all to pay great attention to this, and this will be forwarded to your teachers and then your parents. So there is no escape. So moving forward. Okay, so how many of you know about this concept about your personal identity and now the new concept of real identity? Any guesses? Yes, please. What's the name? इशिता ने मोटा सही बताया है. It's basically your beliefs, values and skills जो आप regular life में believe करते हो, ठीक है? But your digital identity truly changes. There's a huge demarcation when you talk about your digital identity. Okay? So all the information you enter, post and share, ठीक है? And it includes comments you make online. So be very, very cautious of the comments you make online because comments are digitally readable. AI सब करता है आजकल, सब करता है. Everybody knows ना AI सब करता है. ChatGPT कौन यूज करता है अपने असाइनमेंट्स के लिए? Come on. सब करते हैं प्लीज. ये कुछ ऑनर स्टूडेंट्स ही दिख रहे हैं मुझे, सब करते हैं. हाँ या ना? हाँ? ChatGPT. Okay. Got it. So हम इतने ज्यादा ऑनलाइन चीजें यूज करते हैं, so we should be very sure about our safety. What information we are putting online. ChatGPT का किसी ने notations पढ़े, cautions पढ़े? What is it? Please tell me. That your data may be may not be secure and may not be 100% private. Right. So yes. Right. Exactly. So मेटा हमें बोलता है कि फेसबुक पे प्लीज डोंट पोस्ट केक मर्डर कब होता है आपका. डोंट डू दैट प्लीज. डोंट पोस्ट केक मर्डर कब होता है. Who all have posted their date of births on Facebook or Instagram? है ही नहीं. Secretly है, but okay. ओके, सो ये कुछ प्राइम चीजें हैं जो कि आपके ऑनलाइन अवेलेबिलिटी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है. फॉर एग्जाम्पल, ड्रामा सोसाइटी में कौन है इधर? ड्रामा सोसाइटी है स्कूल में? Who all are in drama society? Who likes theatre? Come on. Okay. Volunteer yourself इधर. 2 बच्चे आ जाओ प्लीज. Come. Right. Amazing, great. So, you are a person जो आप ऑनलाइन बहुत यूज करते हो Instagram. You'll have to act like that. You are addicted to Instagram and Facebook. Yes. हाँ, ये मानना है बस. And you're a troller. How would you use this information? You have to describe it to the audience, right? I would take his date of birth and troll him on his birthday. And I would take his pictures and create a fake ID. If I were there in the place of him, I will take his photos and edit his photos and post it in his fake ID. And
if we could figure out his password, because a lot of people keep their password as their date of birth. Blackmail. Or by sending threat messages. Excuse me. What's your name? Lauren. Lakshadweep. Lakshveer and Lauren ने Lawrence. लक्ष्मीर एंड लॉरेंस ने हमें क्या बताया? डेट ऑफ बर्थ को पासवर्ड की तरह यूज नहीं करना, which is a very basic thing. And please don't say QWERTY password is a good password to keep. It is not. It is not. So talking about this slide, ये स्लाइड हमें बताता है कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन किस तरीके से यूज हो सकती है. आपके एम्प्लॉयर के बारे में पता चल सकता है, आपके स्कूल में पढ़ रहे हो वो पता चल सकता है. Somebody who's a predator would not think to use it twice. So be very cautious about who is seeing your posts online. And you can, it is not about कि आप अभी क्या कर रहे हो. It is आप Instagram यूज कर रहे हो कि Facebook यूज कर रहे हो. It's about कि आप overall अपनी digital presence कैसे रखते हो. Okay? So we can see स्कूल भी पता चल सकता है. So predator will not think twice कि इसका स्कूल इधर है. They will go into it. They will go into it. ये मत समझना कि आपको कोई नोटिस नहीं कर रहा है. You are very well noticed everywhere, especially digitally. अब कोई छुपा हुआ नहीं है. Everybody is there. Okay, ways you can be scammed online. और ये जो चलेगा हमारा स्लाइड, प्लीज पे ग्रेट अटेंशन टू इट कि आप कैसे स्कैम किए जा सकते हो ऑनलाइन. These are very basic things. हमें पता होती है लेकिन फिर भी we choose to ignore it. ओके, सो रेप्यूटेशन. क्योंकि रेप्यूटेशन आपकी, जैसे कि लॉरेंस और लक्ष्मीर ने अभी परफॉर्म किया, उन्होंने बोला कि दे विल डिफेम देम. तो रेप्यूटेशन खराब होने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है. सिंस आइडेंटिटी थेफ्ट इज इजीली डन ऑनलाइन. अगर कोई आपका डीओबी जानता है, डेट ऑफ बर्थ जानता है, आपका नाम जानता है, आपका स्कूल जानता है, आपका कॉलेज जानता है, आपका एम्प्लॉयर जानता है, दे नो हाउ मच मनी यू मेक, how much there is balance in your account. They can easily account for your identity and live by the name Lawrence, and nobody will notice it क्योंकि उनके पास सारी information है. Here, please nasty comments से बचे. Don't comment hurtful things. Don't comment in posts जहाँ पे जो reels बहुत ज्यादा controversial आपको sound हो रही है. And be very cautious about what you're seeing online. Money theft is a great problem nowadays. But इसके लिए बहुत सारे चीजें हमने यूज की है. फॉर एग्जाम्पल टोकनाइजेशन ऑफ कार्ड्स. टोकनाइजेशन ऑफ कार्ड्स का बेसिक मतलब है कि आपके पास कार्ड है, आपका कार्ड Amazon कौन यूज करता है, वहां पे कार्ड सेविंग का ऑप्शन आता है. इट इज गुड टू यूज. It is good to use but not very safe to use earlier. But now card tokenization की वजह से the passwords changes. मतलब कि उनका नंबर चेंज हो जाएगा हर बार you make a payment. Cool? Understood? कोई डाउट? कोई डाउट? Yes or no? Identity theft. Okay. So we are well aware कि पासवर्ड्स OTPs नहीं शेयर करने, और बहुत हम रैंडमली व्हाट्सएप कर देते हैं अपने फ्रेंड्स को कि ये पासवर्ड आया है हमारा, टेक इट अप. प्लीज डोंट डू इट. इट इज वेरी डेंजरस फॉर योर डिजिटल प्रेजेंस और योर डिजिटल सेफ्टी. एंड ट्रस्ट मी, इट इज अ ग्रेट कंसर्न, कॉज ऑफ कंसर्न इन प्रेजेंट एज. This is going to be talking about trolls, how people can be hurtful online. Can you see the other part of the slide? Please stop messaging me. Please don't engage in such kind of things. Please don't be the other side of the conversator जो बोलते हैं कि you're not good. Even in your vocal lives, don't do that.
होता है जो हमारे ट्रोलर्स होते हैं वो सबको एक तरीके के मैसेजेस भेजते हैं. दे ऑलवेज कट कॉपी एंड पेस्ट. डोंट डू दैट एंड बी अवेयर एंड बी वेरी कॉशियस ऑफ हु इज डूइंग इट टू यू. एंड फर्स्ट अगर ये स्कूल में हो रहा है, प्लीज इन्फॉर्म योर टीचर्स एंड योर पेरेंट्स. देयर इज नो ifs and buts. एंड हम मूव ऑन जब करेंगे तो फिर we will be needing Jasveer sir जैसे police officers to guide us through, and you can always go back to him since he is here already. Please be very cautious of your digital safety. It is not easy to get out of it once you are in it, but if you are in it, our police officers are right here. They will help you out. सो ये तीन चीजें नहीं, 4 चीजें हैं बल्कि. आप सब मेरे साथ बोलेंगे. पीपल हु आर प्रेडेटर्स वी विल अनफ्रेंड. आवाज नहीं आई, थोड़ा तेज बोलो. We'll unfollow them. We'll block them. And we will make sure that we'll report them. Great. So, 4 चीजें: unfriend, unfollow, block, report. Come on. Unfriend, unfollow, block, report. Great. किस के पास विंडोज का लैपटॉप है? गूगल कौन यूज करता है? बहुत सारे लोगों के पास. ग्रेट, गुड. गूगल पे सब है. तो फिर हमने बहुत बार देखा होगा ना, सेट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स. अगर आप पासवर्ड्स के कैटेगरी में जाइएगा तो दे विल शो यू हाउ मेनी पासवर्ड्स आर रॉन्गली फिल्ड, एज इन व्हाट आर कॉज ऑफ कंसर्न. क्योंकि हम एक पासवर्ड याद कर लेते हैं, वी ट्राई टू यूज इट एवरीवेयर. डोंट डू दैट. वील हैव टू make different passwords for each side. It helps predator to be confused. Moving on. Please don't use these kinds of password. QWERTY, let me in, 1 2 3 4 5 6 7. Don't do that. हमारे हर पासवर्ड डालने के टाइम पे there is a set of instructions. Please do follow them. Memorize 4 or 5 passwords. Use it accordingly. अगर फेसबुक पे हो तो फेसबुक पे प्राइवेसी चेक का ऑप्शन होता है. प्राइवेसी शॉर्टकट्स पे आप जाएंगे तो यू विल इजीली बी एबल टू एक्सेस अ फ्यू इंपॉर्टेंट प्राइवेसी सेटिंग्स करके आएगा ऑप्शन इन द ड्रॉप बॉक्स. And you can move ahead with it. Please go through it. ये आपको सारे concerns बताएगा. And to just a second. Right. You should be aware. इससे पहले वाले You should be aware कि आपके कौन से apps in general as well, not only about Facebook, in general as well. आपके phone का data बहुत सारे आपके apps लेते हैं. You have to check it कि कौन से apps आपका data ले रहे हैं. And if you think, and if your parents think it is justified, then you give the permission, otherwise not. It is very crucial. Please don't forget to log out from the place, especially अगर आप public laptops या फिर PCs use कर रहे हैं या फिर public Wi-Fi पर है. Please do not forget to log out from wherever you are. Facebook specifically, Facebook and Instagram. ये किस को पता है? What is this? Raise your hands. Facebook को ना तुम? Okay. क्या है ये? Tell me about it. It's just you can see our account.
So what is it about actually? क्या है ये, मतलब ये प्राइवेसी के लिए कैसे यूज हो सकता है ये टूल? Yes, please tell me. Right. So basically, this setup could be used कि अगर आपने कभी बर्थडे पिक्चर डाली and you do not want people to know कि आपका बर्थडे कब आता है, you can just select your friends. It's as easy, but it is not used as easily. It's not very popular. अगर आपका basic Instagram or Facebook account public है, तो people choose to post things publicly. But please make sure that you change the settings if you do not want to share a particular information or if it could be used potentially. This is specifically for your parents, so I'll be sharing it with your teachers and they'll be sharing it with your parents. So, मैं इसमें सबकी सीरियसनेस चाहूंगी, ठीक है? Stop NCII क्या करता है? If somebody is threatening to post your pictures online, any intimate kind of pictures, first आपको ये Facebook का एक बेहतरीन, बहुत ही potentially amazing technology यूज कर सकते हो आप. You can go through the steps. I'll be sharing the slides, but stop NCII. Please make a note. It can come handy क्योंकि it is not necessary कि आपने कुछ share किया हो, but it could be used otherwise as well. कि किसी ने आपकी pictures use की हो, if they have installed some cameras or something of that sort. So I would like all of you to make a note of this particular setting. Stop NCII. Digital well-being क्या होती है? Anybody, what is digital well-being? It's a setting by which you can analyze your watch time and get a check on yourself. In phone setting, options is there. It's important, but we can set a timing, like in a day we have to only use 2 hours. I see everybody is shocked. सिर्फ 2 घंटे बोला है. Okay, so digital well-being मतलब there are few apps that are controlled by your parents, and digital well-being is basically about how you use your digital time efficiently and how do you not get trapped inside the conundrum of being a victim of somebody's bad ways. Find a balance. You'll have to manage, जैसे मैंने पहले बोला था, digital citizenship and noble citizenship has a complete drawn out lines. ठीक है? तो फिर you'll have to make peace with your digital life, but you cannot let it enter your personal life. Your personal life should be protected, and you. Is there any? Can I help you? Do you want to say something about digital life? Anything? Sure. Okay. So finding a balance is basically about yes. Right. We can do that. Yes. So basically, digital well-being talks about how you are using digital products essentially, then how you're drawing your line between digital life and your personal life. Code of conduct does include: do not post nasty comments online, do not be a part of trolling. Communicating online should be done. Okay. Communicating. How many of you use WhatsApp? है ना? Everybody of you, mostly, सबके पास होगा WhatsApp and a phone. Please make sure that WhatsApp पे भी आप nasty चीजें ना लिखें. It is a yes, please.
खड़े रहिए हाथ। व्हाट्सएप पे भी आपको बहुत ही केयरफुली मैसेजिंग करनी है। इट इज स्टिल अ थर्ड पार्टी, सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑफ थिंग्स। सो आई विल हैव टू रैप इट अप। दिस स्लाइड विल बी गिवन टू योर पेरेंट्स। इसमें डिजिटल चीजें कंट्रोल करने का एक्सेसिबिलिटी टू योर पेरेंट्स आर गिवन एंड इट्स अ आई टिल नो। ओके, एंडिंग with one unfriending, telling, unfollowing, reporting and blocking. ये essentials है आपके, right? Say yes. I'll be handing over my mic to SHO Tasveer sir, and he'll be taking you forward with the digital safety things. Thank you. We request sir to share his expertise with us. Good morning, students. Hello. Good morning, students. Good morning, sir. You are all from class 9th? Yes, sir. Okay. तो आज का जो आपका ये सेशन है, जैसा कि बहुत अच्छे से मैम ने समझाया आपको डिजिटल सेफ्टी के बारे में, तो इसके बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि दिस इज शी इज ऑलरेडी टोल्ड। पर आपको बेसिक बातें जो पता होना चाहिए वो जरूरी है। किस एक्ट के थ्रू हम साइबर का जो क्राइम है, साइबर क्राइम है, उस पे एक्ट करते हैं, किसी को पता है? If somebody can tell me, law, which act is there for cyber crime? किसी को पता है? Anybody? So it is called IT Act. IT Act की जरूरत क्या पड़ी? You understand? हम कोई भी काम जीवन में गलत करते हैं तो we are citizens of this country, तो उसके लिए लॉ बना है, ठीक है? जो भी कार्य इस देश में हम रह रहे हैं, हमारे लिए हर चीज का एक लॉ बना है, कानून बना है। तो अगर हम कुछ भी गलत करते हैं तो उस कानून के अगेंस्ट जो पेनल्टीज हैं हमें वो भुगतनी पड़ती है, समझ रहे? अगर हम कोई आईपीसी का क्राइम करते हैं, कोई फिजिकल क्राइम करते हैं, मार पिटाई करते हैं, तो उसके हिसाब का हमारे को पनिशमेंट मिलता है। देयर आर पेनल्टीज फॉर एवरीथिंग। तो हमारा लॉ है जो हमें इनेबल करता है अगर कोई गलत करे तो उसको कैसे पनिश करना है। तो अगर वो लॉ ब्रेकिंग फिजिकल टर्म्स में है तो उसकी पनिशमेंट आईपीसी में है। लेकिन आज की डेट, आज का जो एज है ये डिजिटल एज है। 90s में 80s में किसी के पास मोबाइल नहीं होते थे। यू आर ऑल बोर्न आफ्टर 2000 आई गेस। सारे लोग आफ्टर 2000 बोर्न है ना। तो बिफोर 2000 जब हम लोग स्कूल में होते थे तो फोन्स नहीं होते थे, इंटरनेट की भी अवेलेबिलिटी नहीं थी। सो व्हाट वाज द वे टू कम्युनिकेट? लेटर्स। तो लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेशन था। कम्युनिकेशन जो है उसका मेथड चेंज हुआ विद टाइम। सो नाउ इट इज मोबाइल फोन एंड इंटरनेट। एंड मोबाइल फोन और इंटरनेट ने हमारी लाइफ को जो चेंज किया है, उसके कारण जो रिस्क, जो प्रॉब्लम्स, जो तकलीफें हमें आई हैं, उसको समझना जरूरी है। तो 2000 में गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया, 2000 में आईटी एक्ट बनाया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो उस एक्ट के थ्रू अगर हम कोई टेक्नोलॉजी के थ्रू गलत करते हैं तो उसमें हमें पनिशमेंट दी जाती है। मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं या लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि ये मैं गलत कर रहा हूं, ऐसी चीज करने का रिपरकशन क्या होगा।
तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप लोग कहां कहां आईटी एक्ट का उल्लंघन करते हैं, गलत करते हैं, अगर आप ऐसा क्राइम करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना होगा कि जब भी हम कोई फोन यूज करें, इंटरनेट यूज करें, सोशल मीडिया यूज करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, एनीथिंग, तो हमें किसी के अगेंस्ट अगर हम कोई कमेंट करते हैं, कोई अनोनिमस बन के ईमेल करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, वो सब पकड़ा जा सकता है। समझ रहे हो? हम समझते हैं कि हम स्मार्ट हैं, हम ये करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो इस स्टेज पे लोगों को ये समझ में आता है कि मैं किसी को परेशान करना तो फिजिकल लड़ाई नहीं करूं, केवल उसके बारे में उसकी कोई फेसबुक पे गलत आईडी बना दूं, इंस्टाग्राम पे कुछ आईडी बना दूं, उसकी कुछ पिक्चर्स को पोस्ट कर दूं, तो उस तरीके से वो उसको ट्रोल करता है या उससे अपनी दुश्मनी निकालता है। तो ये जो कार्य जो हम करते हैं इसे नहीं करना है। अगर आप करोगे तो यू विल बी कॉट। अभी एक बड़े अच्छे स्कूल का एग्जाम्पल था जहां पे एक 10th क्लास की लड़की थी, 11th क्लास की लड़की, और 10th क्लास के लड़के और लड़की ने उसकी वीडियोस ली और उसको ट्रोल किया और उसको ब्लैकमेल कर रहे थे। तो केस हमारे पास आया। उसके बाद वो जिसने बनाया था, ठीक है ना, वो पकड़े गए। तो उनको समझ में आया कि ये हमें नहीं करना था। उनको इस स्टेज पे पुलिस स्टेशन लेवल पे आना पड़ा इन क्लास 10th और 11th। आप समझ रहे हैं? ऐसे ही किसी ने ईमेल आईडीज कितने लोगों के पास है? एवरीवन, सबकी ईमेल आईडी है ना? वेरी गुड। तो ईमेल आईडी से किसी ने अपने स्कूल को ही थ्रेट कर दिया, बॉम्ब लगा हुआ है यहाँ पे, बॉम्ब। तो उसने एनोनिमस ईमेल बनाई थी और उसके बाद उसने स्कूल में कह दिया आज इतने बजे यहाँ बॉम्ब एक्सप्लोजन होगा। तो इस एज में, जो आपकी एज है, बच्चे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ट्राई करते हैं। तो आपको ये सब नहीं करना है, ठीक है? वो भी एक बहुत अच्छे स्कूल का 9th क्लास का ही लड़का था। सो फाइनली उसका पता चला, प्रिंसिपल, टीचर सब बड़े परेशान थे, लेकिन जैसे ही उसकी आइडेंटिटी क्लियर हुई तो पकड़ा गया। तो आप समझ रहे हैं कि आप अगर कुछ भी गलत करने का सोचते हो तो उसके बारे में इमीडिएटली उसको पकड़ा जा सकता है। बट आपकी जो छोटी मोटी आप जो कार्य कर रहे हैं उसको कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा, कोई उसको अभी रिपोर्ट नहीं कर रहा, तब तक आप बचे हुए। इफ समबडी इज गोइंग टू रिपोर्ट इट तो उस पर एक्शन भी होता है और आप पकड़े भी जाते हैं। तो आपको अभी भी लग रहा होगा कि मैंने ये सब कर दिया लेकिन आज तक मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। तो डोंट बी इन दिस सिचुएशन कि आप कुछ करो और सोचते रहो कि कुछ नहीं होगा। इफ समबडी इज गोइंग टू रिपोर्ट, एक्शन होगा। तो स्पेशली आई एम सेइंग 9th से जो 12th के बच्चे हैं वो अपने क्लासेस में अपने आपस में कलीग के साथ ऐसी चीजें करते हैं। किसी को ट्रोल करेंगे, किसी की फेक आईडी बना देंगे, इंस्टाग्राम पे फेक पोस्ट डाल देंगे, उसकी पिक्चर्स कहीं वायरल कर देंगे। तो ये सब क्राइम है। इफ यू आर गोइंग टू डू इट, आपको इसकी पनिशमेंट मिलती है। सो आई विल टेल कि अगर कोई इस चीज का विक्टिम है, किसी के साथ ऐसा हो रहा है, किसी की ऐसी पोस्ट बनी हुई है, तो उसको रिपोर्ट करना है। बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड नाउ व्हाट टू डू। हम शेयर भी नहीं करना चाहते, हमारी पर्सनल पिक्चर्स हैं, हमारी ऐसी चीजें हैं जो हमें लगता है कि वो किसी के पास चली गई, अब मैं किसको बताऊं, स्पेशली गर्ल्स। तो आपको डरना नहीं है, यू हैव टू रिपोर्ट। आपको बताना है अपने टीचर्स को, अपनी क्लास टीचर को या प्रिंसिपल को, सो दे कैन रीच अस आउट। सो डू वी हैव एनी सच केसेस जहां किसी को ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो? कोई ऐसा है जिसको ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा हो अभी करंट में, कोई ऐसी सिचुएशन है? एनीवन? चलो अभी आप लोग नहीं बताओगे, बट अगर कोई फेस कर रहा है तो वो उसको रिपोर्ट करे, ठीक है? उसका विक्टिम ना बने और अपने आप को कोई ब्लैकमेल कर रहा है, आपको कोई ऐसा कह रहा है कि इसके बदले मुझे ऐसा करो। सो डोंट गेट
आप उसको, आपको डरना नहीं है, आपको उसके बारे में रिपोर्ट करना है ना। तो वो जिसने भी किया है वो पकड़ा जाएगा। सो आई हैव सीन व्हेन आई गो टू स्कूल्स, बहुत बच्चे जो हैं इस चीज का मेंटल टेंशन के ट्रबल लेके अकेले ही झेलते रहते, किसी को भी शेयर नहीं करते। तो आपको ये चीज अगर आपके साथ होती है तो शेयर करनी है, राइट। और कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जो किसी दूसरे को परेशानी में डाले, किसी की आइडेंटिटी नहीं करनी, किसी के साथ हमें ऐसा कुछ नहीं करना जो उसको ऑब्जेक्शनेबल हो, राइट। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू से, बिकॉज आज की जो सिचुएशंस है, अब जो लाइफ है उसमें टोटली वी आर लिविंग इन अ वर्चुअल वर्ल्ड। अभी जो हम सब कुछ इंटरनेट के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं, फील करते हैं, समझते हैं, तो ये क्या है, वर्चुअल फीलिंग। आपको कुछ दिख नहीं रहा। तो सबसे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हम लैक करते हैं वो है सोर्स। अगर हम सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट बनाया है, कहीं पे हम दोस्ती करना चाह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि वो सोर्स क्या है। आप लोग जब स्कूल में भी फ्रेंडशिप करते हैं या आप किसी को अपना दोस्त बनाते हैं या किससे बात करते हैं, आपको पता है कि ये बंदा बी है, अगर ये गलत करेगा तो मैं टीचर को रिपोर्ट कर दूंगा या प्रिंसिपल को रिपोर्ट कर दूंगा। बट सोशल मीडिया पे अगर आप किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपको यही नहीं पता वो है कौन, तो वो क्या है, एक वर्चुअल आइडेंटिटी है। यू कैन नॉट सी, आपको उसका कुछ नहीं पता, ना एड्रेस पता। अगर वो आपके साथ कुछ गलत करेगा तो आप कहां जाओगे। एक ऐसा एग्जांपल मैं बताता हूं। एक सोशल मीडिया साइट थी जहां पे एक लड़की ने सोचा कि मैं चैट करती हूं और एक लड़के ने इंपर्सोनेट करा, उसने कहा कि मैं बहुत रिच बंदा हूं, उसने उसके साथ दोस्ती करी, उसको लगा मुझे पैसे की जरूरत है, तो उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर उस लड़के को किडनैप कर लिया। ठीक है, वो लड़के ने भी नहीं बताया था मैं मिलने जा रहा हूं, उस लड़की ने भी नहीं बताया था मैं क्या कर रही हूं। दोनों अपनी आइडेंटिटी छिपा के सब कर रहे थे, और जब वो लड़का किडनैप हो गया तब पता चला घर वालों को वो किसी से बिना बताए मिलने गया, राइट। तो आपको ये समझना होगा कि ऑनलाइन जो थ्रेट्स है वो किस लेवल के। आप किसी से बात कर रहे हैं, वो आपको कैसे ले रहा है और आपको किस ट्रबल में ले जाएगा, यू हैव नो आइडिया, राइट। अब ऐसा बंदा जिसने सोचा नहीं था, वो किसी को बोल के नहीं गया, उसने किसी को बताया नहीं, लेकिन जब वो फंस गया, जब ट्रैप में आ गया, तो उसके बाद उसको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दिखा। अगर वो किसी को शेयर करता और बिना जाने किसी को ऐसे नहीं मिलता तो ये इश्यू नहीं होता। तो सोशल मीडिया साइट्स पे जब हम किसी से मिलते हैं, दोस्ती करते हैं या कुछ भी बातें करते हैं, तो डोंट ट्रस्ट देम। आप किसी भी प्रॉब्लम में लैंड अप कर सकते हैं। तो सोर्स जो है, बिकॉज फिजिकल वर्ल्ड में हमें ट्रस्ट करने में इतना टाइम लगता है कि ये सही है ये गलत है, और अननोन जगह हम 1 मिनट में ट्रस्ट कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ऑनलाइन इश्यूज की है कि ट्रस्ट ऑन ए अननोन सोर्स। तो हमें अननोन सोर्स जिसको हम जानते ही नहीं, देखा ही नहीं, उस पर ट्रस्ट नहीं करना है और ना अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। इफ यू डू दिस यू विल एंड अप इन ए प्रॉब्लम। ऐसे ही प्रॉब्लम्स हमारे पास आ रहे हैं जहां आदमी किसी भी जगह ऑनलाइन किसी को मिल गया, उस पर ट्रस्ट करता है। ऑनलाइन फ्रॉड जो होते हैं टास्क के नाम पे, पार्ट टाइम जॉब के नाम पे, फेडेक्स कुरियर के नाम पे, आजकल ये ट्रेंडिंग क्राइम्स हैं। तो उसमें क्या होता है, जो भी आपको ऑनलाइन आपको कोई ऑफर दे रहा है जॉब का, पार्ट टाइम जॉब का, इस तरीके से लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो उनसे फाइनली पैसे चीट कर लेते हैं। अभी आप लोग उस स्टेज पे नहीं हो, बट आफ्टर कॉलेज या स्टूडेंट लाइफ के बाद जब आप जाओगे तो गूगल पे या कहीं पे भी या टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे कोई अननोन सोर्स से मैसेज आता है और वो अगर टेम्पटिंग है तो वो टेम्पटिंग मैसेज जो भी है वो आपके नुकसान के लिए है, आपके बेनिफिट के लिए कभी नहीं आएगा, राइट। अगर उसको बेनिफिट करना है तो अपना करेगा, अपना नहीं करेगा। सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि कभी भी ऑनलाइन जब हम किसी से मिलते हैं अननोन सोर्स पे ट्रस्ट नहीं करना है, बिकॉज वो आपको प्रॉब्लम में लैंड अप करेगा।
अगर आप बड़ी स्टेज पे फाइनेंशियल कोई उसमें जाना चाहते हैं तो आपसे पैसे स्टील कर लेगा। तो उस चीज को हमें देखना है कि हमें ऑनलाइन किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। तो इसके साथ मैं आपसे, अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई प्रॉब्लम्स है ऐसी आप फेस कर रहे हो, तो यू कैन से, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, अगर आप शेयर करना चाहते हैं, यू कैन आस्क मी, कोई क्वेश्चन हो आपका। Do you have any questions? Yes. Stand up, please. प्लीज। Stand up. So what if we just track your friend? सॉरी, So what if we just track your friend? करेक्ट, So what if we just track your friend? ट्रैक योर फ्रेंड। आगे आ जाए। Track the offender. Track the offender. Track the offender. Offender. द ऑफेंडर को ट्रैक करना है। Correct. What we if we track the offender? ही ट्रैक। He is saying, you come. If you track the offender, so किस तरह का क्राइम आपने कुछ किया है ऐसा ट्रैक? इनको कोई अगर ब्लैकमेल कर रहा है और इन्होंने अगर उसको पकड़ना, पकड़ लिया आपने। अच्छा, आपने ट्रैक कर लिया कि कौन आपको परेशान कर रहा है, तो यू कैन रिपोर्ट इट। कौन ऐसा कर रहा है आपके साथ, यू कैन रिपोर्ट, यू कैन टेल टू योर टीचर, है ना, शी कैन शेयर इट विद अस। आप अकेले में यू कैन शेयर अगर आप चाहते हैं, राइट? ठीक है, आपको किस तरह का आपको लगता है अभी शेयर करना चाहते हैं, अकेले में करना चाहते हैं, दैट्स योर चॉइस। बताएं, मतलब ऐसा दुनिया बस डाउट है। आपको डाउट है किसी ने क्या किया है, आप बताएं। सर कुछ नहीं किया, बस ऐसा डाउट है। डाउट, हमने पूछा ना कि कोई क्वेश्चन है ट्रैक, अंडर ट्रैक हो जाएगा अगर कोई भी है। ठीक है, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस? बिकॉज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी क्या क्यूरियोसिटी, आप क्या जानना चाहते हैं। मेरे पास तो बहुत चीज है बताने को, बट आपसे कनेक्टेड हो ना वो चीज, तभी उसका कोई फायदा है। What would be like? What would be? How would you differentiate between like just a prank and something? When would like a prank become actually punishable by friends? अच्छा, मैंने फ्रेंड, Yes. Okay. Is it something like that? And how far does it have to go to be punishable? सी, इफ यू आर डूइंग ए प्रैंक, फाइन, उसको तो आप थोड़ी देर बाद उसको बता ही दोगे मैंने ऐसा किया है। अगर उसने रिपोर्ट कर दिया, व्हाट इट, अगर आप अपने दोस्त के साथ कुछ कर रहे हो, उसने जैसे ही रिपोर्ट कर दिया तो एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। टिल दैट टाइम ही इज नॉट रिपोर्टिंग, आप उसको पहले बता देते हो जाके कि मैंने यार ये प्रैंक किया था, ठीक है, तब तक इट इज ओके। अगर आप करके उसको उसी नहीं बता, बट अगर वो रिपोर्ट करेगा, अगर उसको उतना फील हुआ, वो हरास फील कर रहा है या उसको दुख है उस बात का कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो देन वो कंप्लेंट करेगा, उसके फिर एक्शन होगा। समझ रहे? मजाक प्रैंक उतना ही करो जो दूसरा सहन कर सके, राइट? आप पूछे बच्चों को जेल में डाल देते हैं। बच्चे, वेरी गुड क्वेश्चन। सुनो, सी, आपको ये बताता हूँ मैं कि लॉ जो है जुवेनाइल के लिए, जो लॉ है वो अलग है। बिलो 18 जो लोग हैं उनके लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, जिसके थ्रू अगर कोई जुवेनाइल यानी बिलो 18 जो कोई क्राइम करता है तो उसके लिए अलग से लॉ है। ऐसा नहीं कि उसको उस जेल में डालेंगे, बट देयर आर अदर शेल्टर होम्स हैं जो पोस्टल जेल्स हैं जहाँ पे उनको रखा जाता है, राइट? वो बच्चों के लिए ही है, बट पनिशमेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई पनिशमेंट नहीं, राइट? लास्ट क्वेश्चन। सर आजकल एक बहुत फेमस AI स्कैम है, उसमें क्या होता है, अननोन नंबर से फोन आता है, जैसे क्या मैं अपना रिलेटिव बोल रहा हूँ, बट वो आपकी वॉइस भी तो रिलेटिव जैसी होती है, बट वो क्रिमिनल्स होते हैं। तो उन केसेस में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि वो आपका रिलेटिव है या कोई क्रिमिनल। तो वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा। सो ही इज सेइंग कि कई बार हमारे पास फोन आते हैं और रिलेटिव बन के बात कर रहे होते हैं कि आपने जानकार हो, आपका ये, दिस इज अ वेरी कॉमन क्राइम इन जो हमारे केसेस आते हैं। पहचान कौन, आपको फोन आता है कि मैं मेडिकल ट्रबल में हूँ, मैं आपका ये बोल रहा हूँ, मुझे भी ऐसे पैसे चाहिए। उसने व्हाट्सएप पे कोई डीपी लगाई होती है आपके जानकार की या कुछ ऐसी लगाई होती है, आप ट्रस्ट कर लेते हैं, वॉइस भी वैसी होती है।
तो ही इज राइट, ऐसे टाइम पे वी टेंड टू हेल्प हिम, तो उस तरीके से उसको हम पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। तो दिस इज अ क्राइम, यू कैन रिपोर्ट इट। अगर कोई आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। आपको एआई के थ्रू अपना फेस को एकदम क्रेडिट जैसा यूज करके वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। हाँ, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, आपके पास उनका ओरिजिनल नंबर होगा। अगर कभी ऐसा होता है तो आप ओरिजिनल नंबर या ओरिजिनल उस पर कॉन्टेक्ट करें, उनसे पूछें क्या आपके साथ ऐसा हुआ है। हम क्रॉस वेरीफाई नहीं करते और पहले पैसे दे देंगे, राइट। अभी कोई कंपनी का कोई सीनियर बंदा था, उसके बेटे को उसके सुबह सुबह कॉल आती है कि आपका उनका बेटा कनाडा का था, उसके साथ ना किडनैपिंग हो गई है, ये हो गया, इतने पैसे ट्रांसफर करो। तो उन्होंने डिस्कस ही नहीं करा अपनी वाइफ से भी और पैसे डलवा दिए। तो ये बेवकूफी है। हमें समझदार होना होगा अगर हमें क्राइम से बचना है। एजुकेशन हमें नॉलेज देती है, स्कूल में जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो हमें नॉलेज देती है इस वर्ल्ड में आगे हमारा काम करने के लिए। बट समझदार होना और टुगेदर डिफरेंट चीज है। एक अनपढ़ आदमी आपसे ज्यादा समझदार हो सकता है, समझ रहे? समझदारी क्या है? क्रॉस वेरीफाई करो, और आपके पास आपके जानकार का नंबर है, आप कॉल करो, कुछ हुआ होगा, कुछ हुआ ही नहीं मेरे साथ। सो सारे जो साइबर क्राइम है ना, ये सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू ही हो रहे हैं। ये उस लेवल का कोई साइबर क्राइम नहीं, सब जो है ना फ्लूक या ऐसे करने वाले क्राइम। अगर आप अलर्ट हो, आप वेरीफाई करते हो, तो कभी भी आपके साथ साइबर क्राइम नहीं होगा। सीरियस लेवल ऑफ साइबर क्राइम जो है ना, जो रैंसमवेयर है या आपका सर्वर को हैक कर लिया या आपको डीडोस अटैक है, वो लेवल के जो साइबर क्राइम है वो बहुत कम है। मैक्सिमम जो क्राइम अभी आ रहा है वो सोशल इंजीनियरिंग बेस्ड है, इंपर्सोनेशन बेस्ड है। लोग आपको बेवकूफ बना के आपसे पैसे ठगते हैं, आपको आइडेंटिटी थेफ्ट करते हैं। सो दिस इज इट। एनीबॉडी एल्स? चलो, इट वाज अ नाइस सेशन, बहुत अच्छा लगा हमें, और हम दोबारा आते रहेंगे, प्रैक्टिकल बातें करेंगे, राइट, जो हमें एक्चुअल जरूरत है। बिकॉज थोड़ा सा टाइम होता है, तो नेक्स्ट टाइम दोबारा आएंगे तो ऐसे ही हम प्रैक्टिकल बातें करेंगे। और आपको क्लास 9 में हो, आप आगे जा रहे हो, सेफ्टी, डिजिटल सेफ्टी रखनी है, और हर आदमी की रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट को आपको रखना है, किसी को परेशान नहीं करना। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। And insightful, focusing on various pivotal actions to be taken by users while using the cyberspace. Your talk, sir, will definitely help us to be alert of the cybercrime. Thank you. So good morning all. So for those who don't know me, I am Arjit. I am the Note Secretary of the school. So thank you sir, it was a very informative session. So cyber crime is increasing day by day, and as we Gen Zs, we have the responsibility to decrease it and act responsibility. So to achieve this goal, I have created this Cyber Awareness App. So first, when you open the app, this would be the splash screen where you can see all the features of the app. Then you can log in and register. Then comes the dashboard where you can navigate and explore all the features of the app, which are cyber safety quiz and tips to improve cyber safety. Then we can also change the password, name and email. Then this is the quiz. It comprises of 6 questions and tests us on various abilities of cyber safety. Then here are some tips for cyber safety and how we can be safer. Thank you.